So in this we are importing a first pickle. Now this is a file object where I am declaring here my file in a binary mode, right? Binary mode. I am getting name here, marks of physics, chemistry, maths. Now total equal physics plus that chemistry plus maths. These I am making a total. You have to make a total of 5 subjects, and percentage equal float. Why I have written here? From string it will convert into a float. Total into 100 upon 300. If your subject is a 5, then you have to write here 5 subject. Now this is dictionary. Creating a dictionary, this is a key and this is a value which is I am getting from here, and this is a key, this is value, marks of physics, and chemistry, marks of chemistry, this is a key with the mathematics, and this is a value of math marks, and this is total which is calculating here, and percentage we are percentage. Now pickle dot dump, what it is dumping? My dict which is assigning as a dictionary, where it is file में, कहाँ ये write कर रहा है? File object के अंदर. Then this created. So this is a previous class we have already discussed about it. This is in a write binary mode. Now we'll same file with the read mode. See here, few line code you can read your file. Import pickle. This module you are importing. See what will be the question. Write a Python program to read the details of a student marks from a binary file. Which is a binary file? My marks.dat. This is a file which already previous we have already done, and display the each item along with the related to name which you have inserted that you can read with the this binary file. Now importing pickle, this module you have to call, then f equal open. You are opening a which file? My marks. कौन सी फाइल को आप ओपन कर रहे हैं? My marks which you have already created. .dat comma rb. What is rb? This is a mode of binary. Read binary mode. Now get dict. This is a variable. This is nothing. Anything you can write. You can also write any name a b c x y z. Get dict and equal pickle dot load. What you have to load? Load means you have to load. What does dump function? Dump function क्या करता है? आपका जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे उसको कलेक्ट करेगा इन अ डिक्शनरी, देन विद द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट सारे फाइल को आपके कहाँ पे डंप करेगा? फाइल के अंदर, जो हमारा मेंशन होगा यहाँ पर फाइल नेम. अब उसमें से हमें रीड करना है. तो डंप मीन्स वो क्या करता है? बाइनरी मोड. आपका डेटा जो जिस मोड में आप इनपुट करते हैं, in that mode it will not accept, it will convert into a binary number. Binary number आपका कौन सा है? 0 and 1. so 0 1 और 1 फॉर्म में जो हमने इस फाइल के अंदर स्टोर किया ना. नाउ आई वांट टू रीड these all data. तो मुझे क्या करना है? फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी. दिस वेरिएबल कैन बी एनी. इक्वल पिकल मैंने जो डिफाइन कर रखा है, पिकल डॉट लोड करूंगी उसको. लोड क्या करता है? अनसीरियलाइज करता है. अनसीरियलाइज मीन्स जो आपका डेटा है बाइनरी फॉर्म में सीरियलाइज हुआ है उसको अनसीरियलाइज करेगा और आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में वो डिस्प्ले करेगा. लोड फंक्शन. देन किसको लोड करेगा? दिस फाइल ऑब्जेक्ट विद द फाइल नेम. दिस इज अ ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट. ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें ये होल्ड कर रहा है, लोड कर रहा है. देन इस फाइल में लोड करेगा और इसके अंदर स्टोर करेगा. नाउ मैं क्या करूंगी? फॉर लूप यूज कराऊंगी. व्हाट इज माय फॉर लूप? फॉर आइटम. आइटम इज अ काउंटर वेरिएबल. काउंटर मेरा क्या रहेगा? ये आइटम इज अ काउंटर वेरिएबल इन गेट दिस. इसमें जितनी भी वैल्यू होंगी इसके अंदर लोड करेगा और इसके अंदर स्टोर करेगा और इसमें लूप के अंदर ये डिस्प्ले करेगा टिल द लास्ट, बिगनिंग टू एंड. राइट.
प्रिंट, नाउ प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट आइटम, आइटम हमारा क्या है, ये काउंटर वेरिएबल है, लूप है, सो आइटम, then these are a dots will be display get dict, get dict हमारा क्या है, this is a variable which loading the file from in this get dict, क्या किसमें से डिक्ट कर रहा है, आइटम, आइटम हमारा क्या है, ये काउंटर वेरिएबल, देन जो फाइल हमारी ओपन है उसको हमने क्लोज करना है, see whatever you have inserted in previous file that will be visible here, so got it bete, so this is a read mode. अब हम क्या करेंगे, इंटरेक्टिव मोड में पाइथन को मैं आपको शो कराऊंगी, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन, मैम इट इज विजिबल, मैम पिछली वाली स्लाइड लगाना एक बार, वो लास्ट प्रोग्राम लिख रही थी मैम। ओके ओके, सो विल डिस्कस, ये विजिबल है पाइथन इंटरेक्टिव मोड, in this also you can do directly your program, so I am importing here, import pickle, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पिकल को अपने इसमें इंटरेक्टिव मोड में इंपोर्ट कर रही हूँ, राइट। अब मैं क्या करूंगी, एफ इक्वल, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एफ मेरा क्या रहेगा, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपन, ओपन किसको करूंगी, कोई भी फाइल, कोई भी फाइल मैं इसमें डिफाइन कर सकती हूँ सिंगल कोटेशन में, एंड माय डेटा डॉट dat, इट इज विजिबल बच्चे, what is it, my data is a file name, dat is a extension, after comma I am writing with the wb, what is wb, this is a mode, so this is my file, मैंने फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओ सॉरी आई हैव पुट इट अ डॉट, तो यहाँ पर कॉमा आपको पुट करना है, राइट, व्हाट इज एफ, एफ इज अ फाइल ऑब्जेक्ट, open with the open function, what it is opening, this file is opening with the dat extension, मोड क्या रहेगा मेरा, wb, wb means write binary mode, so directly interactive mode also you can do it, so now मैं क्या करूंगी, इसमें फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, राइट, देन मैं क्या करूंगी, इसमें वैल्यू असाइन करना है, मुझे वैल्यू असाइन करना है, तो मुझे क्या करना है, अब पिकल डॉट डम्प, डम्प फंक्शन क्या करता है हमारा, राइट करता है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, वैल्यू, वैल्यू कैन बी एनी, जस्ट आई एम राइटिंग 100 कॉमा, अब ये 100 मेरा क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू है, दिस इज अ वैल्यू, एंड नाउ किसमें राइट करना है, किसमें डंप करना है मुझे, आई विल राइट अ ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम मेरा क्या है, फाइल, तो दिस इज अ वन डंपिंग, दिस इज अ फर्स्ट वैल्यू आई हैव डंप इन माय दिस फाइल, अब मुझे अगेन वैल्यू डंप करना है, तो मैं क्या करूंगी, दिस वैल्यू माय कैन बी, दिस इज माय वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, मैं इसको भी डंप करूंगी, थर्ड वैल्यू मैं अगेन करूंगी, देन ये वैल्यू भी मेरा इस फाइल के अंदर राइट हो गया, देन मैं अगेन वैल्यू मैं पुट करूंगी, इसमें मैं आकाश लिखूंगी, these all value I have written, now मुझे मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यू पुट करना है, तो मैं अगेन इसमें क्या करूंगी, अगर मैं सिंगल वैल्यू
पुट करूंगी तो देन इट विल टेक इन वन आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पर मुझे मल्टीपल वैल्यू करना है, न्यूमेरिक वैल्यू। उसके लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, लिस्ट। सिमिलर टू लिस्ट मैं करूंगी 10, 20, 30, 40। दीज आर माई मल्टीपल वैल्यू। इसको see, you have to remember, if you want to input multiple value, then you need to use inside a normal bracket, you have to use square bracket similar to list। जैसे आप लिस्ट में इनपुट करते हैं वैसे आपको ये कंबाइन करना है। दिस इज अ वन, अदरवाइज सिंगल वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड। अगर मैं इसको मल्टीपल वैल्यू ऐसे कॉमा से सेपरेट करके पुट करूंगी, दैट विल डिस्प्ले एरर। सो दिस विल एक्सेप्ट। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये वैल्यू इनपुट किया, गॉट इट बेटे, पुट किया। सी हियर, पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट पिकल कर दिया, पिकल को मैंने कॉल कर दिया इसके इंटरेक्टिव मोड में, राइट। अब मैंने एफ क्या है, मेरा फाइल ऑब्जेक्ट है जो मैं ओपन कर रही हूँ। कौन सी फाइल को, माई डेटा। माई डेटा इज माई फाइल, जो मैंने जिसके अंदर मुझे राइट करना है, ओके। और डीएटी क्या है, इसका एक्सटेंशन है। डीएटी इज ए एक्सटेंशन नेम। और बाइनरी मोड, दिस इज अ कॉमा, ये वाली लाइन है, दिस लाइन इज अ डॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो कॉमा, आफ्टर कॉमा WB। WB मीन्स ये क्या है, बाइनरी मोड है, राइट बाइनरी मोड। गॉट इट, दिस लाइन, ये लाइन क्लियर है बच्चे, दिस लाइन इज क्लियर। यस मैम। नाउ मैं क्या करूंगी, अब पिकल के अंदर मुझे सीरियलाइज करना है। जो वैल्यू पुट करूंगी उसको सीरियलाइज करके इस फाइल के अंदर स्टोर करे। फर्स्ट मैं क्या करूंगी, पिकल को कॉल करूंगी, पिकल डॉट, पिकल मॉड्यूल में से मैं डंप मेंबर फंक्शन है इसका। हम पहले वाली लाइन समझाना है। हाँ यस बच्चे, पहले वाली लाइन समझाना एक बार और। पहले वाली, दिस लाइन। अच्छा हाँ। पहले हमने इंपोर्ट पिकल, क्लियर है। पिकल क्या है आपका, जैसे आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हो मोबाइल में, फिर उसको यूज करते हो, गॉट इट। उसी तरह से हमने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया, इसको कॉल कर दिया हमारे प्रोग्राम के अंदर पिकल को, राइट। और इसके जो मेंबर फंक्शन हमें यूज करना है यहाँ पर, वो कौन से हैं, डंप एंड लोड। डंप क्या करता है, आपका सीरियलाइज करता है, जो भी डेटा होगा उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके इस फाइल के अंदर स्टोर करेगा। माई डेटा, माई डेटा क्या है, मेरी एक फाइल है। जैसे नॉर्मली वर्ड में आप फाइल बनाते हो तो वो डॉट DOC से स्टोर होता है, राइट। इसी तरह से मैंने फाइल नेम दे दिया, ये इसका एक्सटेंशन रहेगा DAT। और बिन, यू कैन ऑल्सो राइट अ बिन, गॉट इट। ये फाइल नेम हो गया। अब मुझे किस मोड में इस फाइल को ओपन करना है, फाइल ओपन हो रहा है मेरा, और फाइल ओपन किस मोड में करना है, RB मेरा क्या है, ये राइट बाइनरी मोड। राइट करना है मुझे डेटा, रीड नहीं करना है, क्योंकि मैंने डेटा क्रिएट ही नहीं किया। एग्जिस्टिंग डेटा कैन बी रिव्यूड विद द RB। तो हमारा कोई डेटा ही नहीं है, हमने पहले क्या करना है, डेटा को क्रिएट करना है। तो मुझे कौन से मोड में ओपन करना है इसको, RB, राइट बाइनरी मोड। गॉट इट, क्लियर, क्लियर बच्चे। यस मैम। नाउ अब मैंने पिकल जो मैंने इंपोर्ट कर रखा है उसको मैं यहाँ पर यूज करूंगी। आफ्टर डॉट नोटेशन, इस पिकल में से मुझे क्या यूज करना है, डम फंक्शन। डम क्या करता है, हमारा जो भी डेटा है उसको सीरियलाइज करता है। सीरियलाइज मीन्स बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके इस फाइल के अंदर स्टोर करेगा। गॉट इट। ये 100 वैल्यू मैंने इनपुट है, 100 क्या है, ये वैल्यू है, 100 इज अ वैल्यू। और F क्या है यहाँ पर, जो फाइल ऑब्जेक्ट है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फाइल भी लिख सकती हूँ। अच्छा इसमें एडिट नहीं होगा, दिस इज अ इंटरेक्टिव मोड। तो ये मैंने F इज माई ऑब्जेक्ट, और ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दिया, जिसपे मेरा फाइल ओपन है, यहाँ पर इसको मैंने यूज कर लिया। और यहाँ से डेटा डंप करेगा, इस वैल्यू को इस फाइल में स्टोर करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, ये फर्स्ट नेम लिखा इसको मैंने, देन इस फाइल के अंदर डंप हो गया। थर्ड वैल्यू
हुनर को डंप कर दिया इस फाइल के अंदर जो माय डेटा है। देन आकाश को मैंने डंप कर दिया, इसके अंदर स्टोर हो गया। ऑल दीज 4 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो गया। नाउ मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना है, पिकल डॉट डंप। उसके लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि लिस्ट सिंगल अगर कॉमा से सेपरेट करोगे आप, दैट विल शो एरर, ओनली वन आर्ग्यूमेंट इट टेक्स। ठीक है, एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। जैसे मैंने सिंगल वैल्यू यहाँ पे किया, सिंगल, यहाँ पर भी कॉमा हुनर लिखूंगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मल्टीपल वैल्यू आपको इनपुट करना है तो देन व्हाट यू हैव टू डू, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट ऑल वैल्यू मस्ट बी सेपरेटेड विद द कॉमा, एंड अगर कैरेक्टर है तो दैट मस्ट बी इनक्लोज इन अ सिंगल कोटेशन। गॉट इट? ये हमारा वैल्यू है। मल्टीपल वैल्यू को ऐसे करते हैं। देन इस फाइल को फाइल के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। नाउ सेम मैं टेक्स्ट को भी आपको दिखाती हूँ। टेक्स्ट को कैसे करना है आपको, टेक्स्ट को भी इसी में करना है। ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारा मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हम इसमें इनक्लोज कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को भी हम इनक्लोज कर सकते हैं। इसको एंटर करूंगी, एरर नहीं आएगा। गॉट इट? अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने उसके अंदर फाइल के अंदर तो राइट कर दिया ये सारी लाइन। ठीक है, मैम गॉट हमने इट जो बच्चे? 20 यस, हमने 10, 20, 30 से 40 वैल्यू पुट करी है, ये हमने लिस्ट के ब्रैकेट में क्यों करी है? ये वैल्यू अगर आपने, मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया है बच्चे, अगर सिंगल आप वैल्यू करते हो तो सिंगल आर्ग्यूमेंट, अगर नॉर्मल ब्रैकेट में आप सिंगल वैल्यू को आप इसमें असाइन कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू को करना है तो देन यू नीड अ लिस्ट। लिस्ट क्या है हमारा, लिस्ट क्या है हमारा, जिसमें मल्टीपल वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं। तो मैंने लिस्ट एज अ ब्रैकेट ले लिया, ये वैल्यू को स्ट्रिंग और नंबर दोनों का बता दिया मैंने। ठीक है, दोनों वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू आपको डंप कराना है तो आपको यू नीड यूज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करते जाना है वैल्यू को। गॉट इट? यस बच्चे, साइड बाय साइड आप भी करो, सिंगल सिंगल लाइन है, ये करो साइड बाय साइड। ओके मैम। हाँ, ये वैल्यू को मैंने कंबाइन, मल्टीपल ओके मैम। वैल्यू का एग्जांपल दिया है बच्चे मैंने। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करते हुए मल्टीपल वैल्यू को हम असाइन कर सकते। अदरवाइज सिंगल वैल्यू, इसकी मैं एक कॉमा करूंगी, सेम मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं इसमें सी 10, 20, मैम न्यूमेरिक वैल्यू के लिए बस स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर मतलब हाँ, नॉर्मल ब्रैकेट न्यूमेरिक और कैरेक्टर दोनों, मल्टीपल वैल्यू। जैसे मेरा पहले क्या 100 किया, इसको इसने एरर नहीं शो किया। जैसे अब मैंने लिस्ट में यहाँ, हम मल्टीपल वैल्यूज लिखते हैं। हाँ मल्टीपल वैल्यू, जैसे मेरा 10, 20, 30 ये मल्टीपल वैल्यू है और मैं अब इसको हम्म मैम जैसे अब हमने इन सब वैल्यूज को डंप कर दिया। अब हमने जो जो वैल्यूज डाली अभी हमें एक्सेस करनी है, तो रीड मोड में जाके इनके लिए फिर रीड पिकल मोड में नोड अभी यूज वही फंक्शन बता रही हूँ, मैं करेंगे। बता रही हूँ। जैसे मैंने कॉमा से नॉर्मल ब्रैकेट में मैंने ये मल्टीपल वैल्यू पुट कर दिया विद द फाइल ऑब्जेक्ट, तो ये एरर शो करेगा सी, बिकॉज इट टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर देखो, टेक्स एट मोस्ट 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉर गिवन। इसमें आपको दिस इज अ लाइन एरर, तो ये लाइन एरर शो कर दिया इसने। गॉट इट? अब मैं क्या करूंगी, इसको मैम मतलब 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते? 3 से ज्यादा भी नहीं, 3 से, बट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। एक से अच्छा ज्यादा आपका अच्छा। एलिमेंट होगा तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में ले, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया। ब्रैकेट के अंदर ही स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करना है, देन कॉमा से सेपरेट करते जाना है। मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू आप इसमें असाइन कर सकते हो। गॉट इट? अब मुझे क्या करना है, अब ये मैंने असाइन कर दिया वैल्यू, देन मैं क्या करूंगी, उसको रीड मोड में इसको ओपन करना है। तो मैं क्या करूंगी, सेम मेरा फाइल, यही फाइल है मेरी, यहाँ पर आर करूंगी, सॉरी आरबी, रीड बाइनरी मोड में इसको ओपन किया। एरर आया? नहीं आया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, पिकल डॉट
मैंने क्या करना है, किसको लोड करना है, देन अगेन इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, लोड। किसको लोड करना है, मुझे फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एफ सी। फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या थी, 100, 100 आया, गॉट इट। सेकेंड टाइम इसको कॉल करूंगी, सेकेंड टाइम इसको यूज करूंगी मैं, देन ये फर्स्ट सेकेंड नेम आया, एंड थर्ड टाइम इसको यूज करूंगी, हुनर आएगा। ठीक है, आर यू एबल टू व्यू। एंड देन अगेन यूज करूंगी, क्या आएगा, आकाश। देन अगेन मैं यूज करूंगी जो मेरा मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यू था उसको डिस्प्ले करेगा, अगेन मैं इसको यूज करूंगी, देन ये डिस्प्ले करेगा एबीसी। गॉट इट, क्लियर बच्चे। यस बच्चे, ये यस क्या मैम, क्लियर है। क्लियर है। सो ट्राई दीज ऑल कमांड्स, ट्राई करो जल्दी जल्दी। इंपोर्ट पिकल, ओके जल्दी मैम। करो बच्चे। ये कॉमा से सेपरेट करना, दिस लाइन इज अ एरर, दिस इज अ एरर लाइन, राइट इट। सेम स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, प्रोग्राम में करना है। प्रोग्राम भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट टाइम इज लेस। आप ये प्रैक्टिकल करके मुझे शो करो स्क्रीन फास्ट। आकाश क्लियर है बच्चे। आकाश क्लियर। Yes, ma'am. मुस्कान, एनी डाउट बच्चे। नो मैम। मैम मैंने कर लिया और आपको पिक भेज दिया व्हाट्सएप पे, देख लो। हाँ, शेयर करना है। आप अपने ये ट्राई करो बेटे, इंपोर्ट पिकल करके ये फाइल, मैम कर लिया। फाइल नेम ये दो और पिकल डॉट डंप लिखना है, उसके बाद वैल्यू लिखना है, करो अपने आप। मैम कर लिया, आपको भेजा है मैंने आपको। अच्छा, व्हाट्सएप में भेजा, ओके। मैम जैसे अब हम पिकल लोड एफ डालते जाएंगे तो एक एक करके वैल्यू आती जाएगी। हाँ, उसको एंटर करते जाओ, क्योंकि मैंने फॉर लूप नहीं लगाया इसमें। फॉर लूप हमारा अच्छा, क्या काम करता है, फॉर फोर लूप लूप जैसे मैं लगाते तो फॉर इकट्ठी लूप आ जाती लगाएंगे, सारी। फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा, देन हाँ। सेकेंड वैल्यू को, थर्ड वैल्यू को, फोर्थ वैल्यू को, जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने टाइम्स वो प्रिंट करेगा। फॉर लूप तो नहीं मैम हम लगाया बार तो बार एक एक पिकल लोड एफ लिख रहे तो उसके अगला अगला आता जाएगा ना, मतलब अगला क्या अगला कहते आता हैं। जाएगा, टिल द लास्ट एलिमेंट, टिल द लास्ट ओके मैम, लाइन है वहां एक तक बार ही आता नीचे जाएगा। कर प्रोग्राम। हाँ ठीक है, मैम ये लास्ट तक आ गया। ठीक है मैम, ओके आ गया लास्ट मेरा समझ। ये था एबीसी, दिस लाइन, ये लाइन एरर थी, मैंने आपको शो किया था, दिस इज अ एरर लाइन। यस तो यस ये यस। लास्ट लाइन हमारा क्या था, एबीसी, वहां तक जब तक ये लास्ट वैल्यू। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको अगेन इसको पिकल एफ करूंगी तो क्या आएगा, देखो एरर एरर आएगा। आ जाएगा। उसके मैम बाद मैंने कोई किया वैल्यू था। नहीं है, बिकॉज देयर इज अ नो वैल्यू आफ्टर दिस, सो एरर आ जाएगा। गॉट इट, ठीक है बच्चे। मैम यस, मैम जो स्टार्टिंग वाला प्रोग्राम था ना, वही वही दिखा दो। कौन सा वाला, जो स्लाइड में मैंने शो किया था। मुस्कान, मैम यस बच्चे। मैम लास्ट आपने जो अभी तक ये स्टार्टिंग वाली वाला पीपीटी नहीं प्रोग्राम था ना, भेजी। ये तो भेज दी मैंने, भेज दिया बच्चे। और मैम आपको मैम वो पहले वाली भेज दी थी ना, ये वाली कहाँ भेजी थी? भेजी है मैंने, दोनों भेज दी है, आप देखो चलो मैं देखता हूँ। उसमें सारी है, सारी उसी को मैं एक एक थोड़े थोड़े करके पढ़ा रही हूँ मैं। स्टार्टिंग वाला प्रोग्राम दिखा दो। जो रीड मोड में था, यस मैम।
जो मैम आपने कल वाला प्रोग्राम जो आधा कराया था वो उसका लेफ्ट ओवर रीड मोड वाला कह दिया। अच्छा रीड मोड ये शो कर दिया मैंने, विजिबल है ये बेटे। सी इंपोर्ट पिकल 3-4 लाइन, इसमें देखो फॉर लूप लगा हुआ है। मैम हो गया। फॉर आइटम कहाँ तक चलेगा, डिक्शनरी तक, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट के साथ हमने किया, उसमें हमने इंटरेक्टिव मोड में डायरेक्ट कर दिया पिकल डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट। इसमें हमने पहले असाइन किया क्योंकि हमें ये फॉर लूप चलाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने वेरिएबल एक असाइन कर दिया, उसको लोड करके उस वेरिएबल में स्टोर करेगा। डायरेक्टली पिकल हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसको हमने लोड करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया। देन यहाँ पर फॉर लूप आइटम आई लगा दो, कुछ भी लगा दो, देन इन यहाँ तक चलेगा, ठीक है। जो वेरिएबल आपका यहाँ पर असाइन होगा वहां तक चलेगा। प्रिंट आइटम जो फॉर लूप में आप यूज करोगे उसको यहाँ पर असाइन करना है, देन जहां तक चलाना है उसको वहां उसके स्क्वायर ब्रैकेट में आपको पुट करना है। बिकॉज आपका सिंगल आइटम नहीं है, बहुत सारी आइटम है, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है एज ए लिस्ट। रन हो गया ये वाला प्रोग्राम। डन रन हो गया, मैंने आपको भेजा है फिर। मैम मेरा भी हो गया। हो गया बच्चे। ये तब चलेगा जब आपका प्रीवियस वाला चलेगा, तब ये भी चलेगा। मेरा आ गया मैम, देख लो एक बार। हाँ अब समझ आ रहा है बच्चे? यस मैम। यस मैम आ रहा है। यस गुड। आकाश समझ आ रहा है बच्चे? यस मैम। ऐसे सिंपल है, देखो अपनी फाइल क्रिएट करो कुछ भी मोड में, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाओ, प्रोडक्ट का बनाओ, कोई भी रिकॉर्ड बना के एक फाइल में डंप करो और उसको लोड मोड में आप कर सकते हो। डू प्रैक्टिस। मैम यस बच्चे। मैम कब रीड मोड और कब राइट मोड यूज करना होता है? पहले हम राइट मोड में करेंगे, जो प्रीवियस स्लाइड था ये वाला प्रीवियस वन। पहले राइट मोड, जब हम राइट मोड में करेंगे तब हम रीड मोड में उसको देख सकते हैं। गॉट इट? ये हमारा राइट मोड में, पहले ये वाली फाइल क्रिएट करनी है राइट मोड में, देन उसके बाद रीड मोड में ओपन करना है, ठीक है। तभी आपका डेटा व्यू होगा। यस हम डंप फंक्शन मतलब हम उसमें इनपुट कर रहे हैं और लोड फंक्शन मतलब उसके अंदर हम आउटपुट दिखा रहे हैं। हाँ, डंप का मतलब आप क्या कहे, पिकल हमने यूज किया, पिकल के अंदर डंप फंक्शन जो हमने वैल्यू गेट किया, जो इनपुट किया, उसको क्या करेगा, डंप करेगा, उसके अंदर राइट करेगा, सीरियलाइज करके फाइल के अंदर स्टोर कर फाइल के देगा अंदर ना। राइट करेगा। गुड। उसके बाद हमें अब डंप हो गया, हमने रख लिया फाइल के अंदर। सी अब हमने उसको देखना है, रीड मोड़ना है। जैसे आपने कंप्यूटर में कुछ भी आपने काम किया, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया, तो अब नेक्स्ट डे कभी भी आपको देखना है उसको, तो हम क्या करेंगे, उसको रीड मोड में ओपन करना है उसको, ठीक है। रीड मोड में तभी हम यूज करते हैं जब ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग डेटा उसके अंदर है, तब उसको रीड मोड में, अदरवाइज कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, फाइल एरर आएगा। गॉट इट? ठीक है। तो राइट मोड में जो डम से डायरेक्टली आप देख नहीं सकते उसको, यू कांट सी दैट, बिकॉज वो किस मोड में होता है, बाइनरी मोड में होता है, बाइनरी 0 और 1 कोड में होते हैं, तो उसको डायरेक्टली हम रीड नहीं कर सकते। तो लोड फंक्शन क्या करता है, आपका पूरा जितना भी डेटा इसके अंदर स्टोर है उसको लोड करेगा पिकल से, और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा, फिर उसके साथ फॉर लूप आप लगा सकते हो और उसको डिस्प्ले करा सकते हो। गॉट इट? क्लियर बच्चे? मैम यस मैम। अब ये मैम मैं क्वेश्चन लिखो जरा, राइट डाउन, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन। राइट अ पाइथन मैम व्हाट्सएप प्रोग्राम, पे अच्छा चलो write a do fast, write a Python program to input admission number and marks of 5 subject। मैम एक सेकंड मैम, थोड़ा आराम आराम से बोलो। तो अच्छा मैं इनपुट सेंड कर दूंगी, ये बंद होने वाला है 1 मिनट। यस मैम, आप व्हाट्सएप पे लिख के दे दो। हाँ ठीक है, I'll send ओके मैम। प्रोग्राम। और ये रिस्पॉन्स आपका मार्क्स लगेंगे 10 मार्क्स, रिमेम्बर इट, सर्कुलर यस पढ़ा है मैम। आपने? हाँ ठीक है यस बच्चे। मैम।
ओके, ओके मैम, सी यू Bye, नेक्स्ट ma'am. क्लास। ओके बच्चे, मैम आप भेजोगे कब? ठीक है। डू प्रैक्टिस बच्चे, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। ओके बच्चे, बाय। थैंक यू मैम।